Hi guys, so today we'll start the Supreme Court. In the last lecture, we have just gone through the basic terms of judiciary. Now we'll start the Supreme Court itself. The Constitution of India provides for an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the High Courts below it. Okay? So you can see Supreme Court at the top, High Courts at the bottom of that. Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts, like district courts या other कोई भी lower courts है. The unified judiciary enforces both central law as well as the state laws. So this whole judiciary, this whole system, from Supreme Court to the very down. So we have this, and unifiedly they will just enforce the central laws as well as the state laws. Now coming to the Supreme Court, High Courts, and we have the subordinate courts. District courts are metropolitan. For example, district courts are somewhere like for the Delhi, it should be a metropolitan city, so it should be a metropolitan areas. Coming to the any other districts, local district, we have a subordinate judge court, SJC civil, provisional small cause court, criminal session courts. Coming to the subordinate, we have a municipal courts or Nyaya court, panchayats. So in the criminal, we have a subordinate magistrate court and has two part judicial as well as the executive. And at second one is the panchayat adalats. Now coming to the metropolitan, it having the three types. So metropolitan magistrate court, presidency small cause court, and city civil and session courts. This single system of court was adopted from the Government of India Act, so as a mini constitution जिसको बोलते हैं वहाँ से. This act of 1935 provided for setting up the Federal Court of India, which has been replaced with the Supreme Court after independence. Federal Court था before the independence, ठीक है. So and after the uh, replaced after independence, it is called as the Supreme Court, है ना. The Supreme Court of India was inaugurated 18 January 1950, of course. So now, some other constitutional provisions related to that. So we'll not go into this because if we are studying this, we are indirectly going to this. Huh? So 124 की हम study करेंगे तो this is nothing. This is this ना establishment and constitution of the Supreme Court. How it is composed and the organization. So Article 1 to 4 clause 1 states that there shall be a Supreme Court of India constituting a Chief Justice of India, and under Parliament prescribes a more significant number of not more than 7 other judges. Okay? So what does it mean? Article 1 to 4 clause 1 stated there should be a Supreme Court and it should contain a Chief Justice of India. सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक चीफ जस्टिस साहब होने चाहिए, उसके अंदर अ सिग्निफिकेंट नंबर जो मेंशन है, बट शुड बी नॉट ग्रेटर देन 7. ठीक है, 7 नंबर से ज़्यादा जजेस नहीं होने चाहिए. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जजेस जो बेंच होते हैं 7 से ज़्यादा नहीं. द पार्लियामेंट हैज़ इंक्रीज दिस नंबर ऑफ द जजेस प्रोग्रेसिवली इनटू 10. देखो सबसे पहले ये 7 थी, अब ये 10 हुई है 56 में. Then it is 13 in 60, 17 in 77, 25 in 1986, and 13 in 2008, and 33 in 2019. Currently, the Supreme Court comprises of 34 judges, 1 Chief Justice, and 33 other judges. So, सबसे पहले ये 7 थी, but it has increased to the 33 other judges. ठीक है, plus 1 Supreme Court. Coming next. The changes in the number of judges in the Supreme Court are done by Parliament by amending the Supreme Court Act. ठीक है, so basically number of judges में changes कौन कर सकता है? That is Supreme Court itself. Sorry, the Parliament itself. Seat of the Supreme Court 130. Okay, we'll go through this also. ना? We are now seats of Supreme Court 130 में है. 130 declares Delhi as the sole seat of the Supreme Court of Constitution. तो दिल्ली में है, ठीक है. However, 130 also says that the Chief Justice of India, with the approval of the President,
from time to time appoints the seat of Supreme Court in other places or uh, places. So basically solely दिल्ली में है, ठीक है, बट 130 बोलता है कि अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे टाइम टू टाइम वो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोविजन इज नॉट कंपल्सरी एंड द सुप्रीम कोर्ट टू डेट हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड द सीट इन अदर प्लेसेस। बेसिकली कहीं और नहीं बनाया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इन 2021 अ प्राइवेट मेंबर बिल ये आया था 2021 में। तो इट इज डिमांड्स द सेट ऑफ द 4 रीजनल ब्रांचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जोन्स में एक एक जोन होनी चाहिए थी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट विल बी सेंट्रलाइज्ड फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है एक जगह पे, लेकिन अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज कर दोगे, एक बना दोगे असम में, एक दिल्ली में रह जाएगा, एक बन जाएगा महाराष्ट्र में, एक बन जाएगा चेन्नई में, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब कुछ कवर कर लिया आपने, बट इट इज डिसेंट्रलाइज नाउ। इसकी नीड क्या थी? Coming to the constitutional necessity, Directive Principles of State Forward Policy, DPSPs, Article 39A directs the state to ensure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity, to ensure that justice is to not denied to any citizen for the reason of economic or other disability. देखो, बेसिक जो डीपीएसपी सेव कर रहा है, लीगल सिस्टम के अंदर जस्टिस सभी को इक्वल मिलना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आजकल तो चलो ऑनलाइन हो गया, बट वे बैक, बट फिर भी कितना ऑनलाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मेघालय के किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यू शुड हैव टू कम टू दिल्ली, है ना। एंड फॉर एग्जांपल एक दिल्ली के पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो उसको अगर 15 मिनट लग रहे हैं, मेघालय वाले को वही एक दिन से ज़्यादा लग रहा है। विद द फ्लाइट इट इज़ रिड्यूस्ड, बट अगर इट्स अ कॉमन मैन बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, इट टेक्स मोर देन 1.5 days, है ना। एंड फॉर द मेंटल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एज वेल, उसके एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, फिर नीचे डाउन मतलब साउदर्न के लिए ऑल्सो। अब डिपेंडेंसी बहुत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये किया गया था कि अब अलग अलग जगह बना दो, ठीक है। The Supreme Court will act as a constitutional court. The primary function of Supreme Court is to hear matters concerning constitutional issues. बेसिक उनका फंक्शन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा वो इश्यूज सुनेंगे वो। The number of cases decided by the constitutional benches, देखो 5 और more जजेस की बेंच जो होती है वो डिक्लाइन होती जा रही है। बेंचेस देखो, बेंचेस मतलब मोर नंबर ऑफ जजेस मोर इम्पोर्टेंट केस, वो डिक्रीज होती जा रही है। रीजनल ब्रांचेस विल हेल्प ईज द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज रीजनल ब्रांचेस अगर होंगी तो वो, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न में एक सुप्रीम कोर्ट है तो वो उसकी बातें सुनेंगे, ठीक है। मतलब अब फॉर एग्जांपल 50,000 केस को एक कोर्ट देख रहा है, और अगर 50,000 केस को 4 कोर्ट देख रहे हैं तो डिफरेंस तो आएगा, अब वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। However, high civil case backlog has discouraged civil case filing, while may impact India's future economic growth, of course. Setting up a regional bench will also address these challenges. Problems with regional branches, हमने need देख ली, we'll see the problems. The Indian Constitution has mandated an integrated judicial systems with the Supreme Court at the top and high courts. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें आपका, तो दिस इज द टॉप है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स। अगर रीजनल ब्रांचेस बनती हैं तो ऐसे होगा सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नॉर्थ, सुप्रीम कोर्ट वेस्ट, एंड 1 and 2 फॉर द ईस्ट एंड जो भी साउथ है, ठीक है। 4 सुप्रीम कोर्ट्स आ जाएंगे। देन कम्स अंडर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। सो इट स्ट्रक्चर चेंजेस टोटली, सो इंटीग्रिटी हैज बीन चेंज्ड, है ना।
सेटिंग अप रीजनल कोर्ट्स में अपसेट दिस यूनिटरी करेक्टर। देखो सिंपल करेक्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यूनिटरी बनी हुई सिस्टम बना हुआ, सारा हिल जाएगा। और अब देखो अब सुप्रीम कोर्ट ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ये भी है। अब ये नहीं रहने वाला ना फिर टॉप वाला, इस चारों भागों में बंट गया अब सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसके कुछ फैसले होंगे, इसके कुछ फैसले होंगे, इसके कुछ, फॉर एग्जांपल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ बनता है, वो यहाँ पे लागू नहीं होने वाला। देखो फॉर एग्जांपल लेट अस मी गिव यू एग्जांपल कि यहाँ पे ईस्ट वाला है, यहाँ पे नॉर्थ एक साउथ वाला है, ठीक है। दिस इज ईस्टर्न सुप्रीम कोर्ट, दिस इज साउदर्न सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर। कुछ ईस्ट में कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट पास कर देता है या किसी को छोड़ देता है, किसी क्रिमिनल को विद द जियोग्राफिकल फीचर्स। तो पूरे इंडिया पे लागू होगा ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जो भी है, लेकिन वो साउदर्न में अप्लाई नहीं हो सकती वो चीज़। तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा फ्री फंड में, है ना। एक न्यूट्रलिटी बननी चाहिए ना, कि एक सभी को बराबर होनी चाहिए वो चीज़। इक्वालिटी नहीं हो रही अब यहाँ पे, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रिविलेज मिल रहा है, यहाँ डिग्रेड हो रही है कुछ चीज़। लेकिन अगर एक सिंपल ये नहीं होता है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट होता, हाई कोर्ट, वो सभी को इक्वालिटी में देखता। यहाँ पे अपने अपने एरिया वाइज इक्वालिटी मिल रही है, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड है। तो सुपीरियरिटी खत्म हो सकती है। In 2010, the full court comprises 27 judges and headed by the Chief Justice of India had rejected the Law Commission recommendation for regional branches, citing this reason. However, in India, many high courts have different branches such as deliver justice without diluting the integrated legal system. तो हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। हाई कोर्ट आज काफ़ी सिटी में है, आपके मेन जो भी कैपिटल है स्टेट की उसमें है, या फिर कहीं और खोल सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट अगर किसी जयपुर में है मेन, तो वो हाई कोर्ट अगर अजमेर में है तो भी है, तो भी काम कर रहा है अच्छे से काम हुआ है, ऐसा नहीं है। बट ड्यू टू दीज काइंड ऑफ रीजन, जो इंटीग्रेशन यहाँ पे भंग नहीं हुई है, इंटीग्रेशन डाइल्यूट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम रहा है वो हाई कोर्ट के केसेस में। बट इफ़ यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट विल मे बी अ डैमेज टू आवर थिंग्स, बिकॉज वो स्टेट का मामला है ना। Moreover, a state follows what? State follows a basic nature, ठीक है। लाइक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बेसिक टोपोग्राफी को फॉलो करता है, बेसिक जियोग्राफिकल एरिया को फॉलो कर रहा है वो, है ना। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर को बोल रहे हो तो आप कभी के जहन में एक ही चीज़ आएगी, अब ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठंड होगी वहाँ पे, ठीक है, केसर होगा, ये जो ऑर्चर्ड्स होंगे, ठीक है। अब आप सेम थिंग अब ऐसा ना बोलोगे केरला में भी है, नहीं ना। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स। जम्मू कश्मीर में अगर 4 हाई कोर्ट्स हैं तो दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। बट इफ़ यू से कि केरला में 4 हाई कोर्ट्स दैट ऑल्सो है, बट इफ़ यू से कि एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ है ऊपर, एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एक सुप्रीम कोर्ट केरला में है, दैट टोटली अ मेस्ड अप सिचुएशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट 1 to 4, Clause 2 of the Constitution, every judge of the Supreme Court shall be appointed by, of course, the President of India by warrant of his hand and seal. Of course, it is very much known. This is done by consultation with such of the judges of Supreme Courts and the High Court in the states, as the President may deem necessary for this purpose. Of course, President साहब को समझना पड़ता है, उनको तो लॉ के रिलेटेड पर्सन्स की थोड़ी हेल्प चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए कि किसको बनाया जाए सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और व्हाट डज इट मीन कि जो भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ। तो चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो जजेस की बात होगी तो वो बेसिकली स्टेट हाई कोर्ट के जजेस से, हायर सीनियर जजेस से, सीनियर लॉयर, मतलब जिनसे भी कंसल्टेशन लेके जो अदर जजेस होते हैं, जो भी 33 जजेस हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के, उनको हायर, मतलब नॉट हायर बट उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। Questions of consultation versus concurrence. The Constitution of India Article 1 to 4 does not make it clear if the consultation for the appointment of judges is obligatory, which could mean concurrence, or the President may consult and make the decision independently. Over the years, the Supreme Court has itself ruled and interpreted it differently. This eventually led to the evolution of a collegium system. So you can see ना कि देखो क्लियर है आर्टिकल की, ये क्लियर नहीं करता, सॉरी, आर्टिकल 1 to 4
की कंसल्टेशन लेना इन जजेस की, इट इज़ लाइक ऑब्लिगेटरी, मीन्स पक्का ही है कि लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट में कंसल्ट, ये तो प्रेसिडेंट ले ले या फिर ना ले, मर्जी है उनकी। बट ओवर द ईयर्स सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको क्लैरिफाई या इंटरप्रेट अपने तरीके से किया है डिफरेंटली, and it is eventually led to the evolution of the collegium system. So now in the first judge case, the Supreme Court declared that consultation does not imply concurrence. Let me just give a minute. Okay. Okay. The Supreme Court declared that consultation does not imply concurrence. देखो consultation लेने से वो बात मतलब agree नहीं हो जाएंगे, and only means exchange of view, giving the executive primacy of the judiciary and judicial appointments. बेसिकली कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया था कि जो कंसल्टेशन है जजेस के साथ, अदर हाई कोर्ट के जजेस के साथ या अदर जजेस के साथ, दैट इज नॉट डज नॉट इम्प्लाई कि आप यू एग्री अबाउट दैट, इट एंड इट ओनली मीन्स ना एक्सचेंज, मतलब इट डज नॉट कि आपको माननी पड़ेगी, आपको सहमत होना पड़ेगा एंड व्यूज एक्सचेंज करने हैं जस्ट। इट डिक्लेयर्ड द primacy must be given to CGI recommendation on judicial appointment। तो primacy या फिर आप बोल लें कि आपको इम्पोर्टेंस इसको देनी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन होगी ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, बट ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड और कॉग्निजेंट रीजंस। बट ट्रांसफर होते हैं वो बेसिकली रिफ्यूज किए जा सकते हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस। Second judge case, Supreme Court reversed its earlier stance, holding that consultation meant concurrence। देखो कंसल्टेशन का मीन्स आपको सहमत होना पड़ेगा, एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द CGI इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मीन्स पहले बाइंड नहीं थी वो, अब बाइंड करती प्रेसिडेंट के ऊपर। आपको जो रेकमेंड 10 नाम कर दिया आपको 10 के 10 को बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉट चूज अदरवाइज। सो इट इज लाइक कि प्रेसिडेंट साहब अब ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकता, अदरवाइज ये कर लो आप, नो। तो however it added that this advice is not CGI's individual opinion and CGI must consult the two senior most judges in the Supreme Court, of course। तो भाई देखो बाइंडिंग तो कर दी प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि CGI के मन में जो आए वो किया। CGI साहब के जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होंगे टू, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड की जजेस केस जो आया था, had the plurality of opinion must be taken, and the president referenced Article 143 expanded the collegium to the 5-member body comprising of chief justice and foremost। देखो अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर बताएंगे कौन सा किस चीज़ को जुडिशली रखना है, ठीक है, एज जज। कॉलेजियम सिस्टम, the body of a Chief Justice of India, together with 4 senior most judges of the Supreme Court, came to known as the Collegium, which is nothing but जो CGI साहब है plus the 4 senior most judges of the Supreme Court, ठीक है, उसको Collegium बोलते हैं, उनके एक joint, ठीक है। Similarly, the Collegium for the High Court is led by the Chief Justice and 4 other सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो और उनके साथ के 4 हाई सीनियर मोस्ट जजेस, प्लस अगर मैं बोलूँ स्टेट वाइज की स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसका कॉलेजियम क्या होगा, तो दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस द 4 सीनियर मोस्ट जजेस अदर। However, in the case of the High Court, approval of the CGI and the SC Collegium is taken for the final recommendation। कॉलेजियम बनाने के लिए अगर आप देखें, अगर बेसिकली अगर हाई कोर्ट में तो कॉलेजियम वही है, लेकिन आपको बनाना है कॉलेजियम तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी, फाइनल रिकमेंडेशन, ठीक है। द जजेस ऑफ हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली इज नथिंग, जो हायर जुडिशरी की कॉलेजियम सिस्टम हमने देख लिया। तो जो हायर जुडिशरी के जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स है ना, उनके जो भी मतलब जजेस होंगे उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द कॉलेजियम सिस्टम।
Okay, thus the government of the day has a very limited role in the appointment of judges. The government has also acted as on the recommendation of the collegium. वही उन्हीं की मतलब गवर्नमेंट भी collegium की ही बांधती है. However, the government conducts an inquiry by the Intelligence Bureau if a lawyer is to be elevated as a judge in a High Court or the Supreme Court. तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर ये मतलब जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें कि जो भी जज बनाने के लिए जिसको भी रेकमेंड किया जा रहा है उसकी फुल बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक हो. ठीक है. So it's a very crucial post ना, judge of any high court or supreme court. So it can raise an objection and seek clarification from the collegium, of course. Critical analysis of the collegium system benefits what judicial independence. अब देखो कॉलेजियम सिस्टम बन रहा है तो आपको एग्जीक्यूटिव की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही. एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट बीच में नहीं इंटरफेयर कर रही है बहुत, या फिर लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स को या ट्रांसफर्स को लेके. तो प्रॉपर डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर इज व्हाट, यही है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर. कि जुडिशरी के सिस्टम में आप जुडिशरी मतलब जुडिशियल जो भी प्रोसीजर है उसमें एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर आपका इंटरफेयर ना करे, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर ना करे. मतलब ऑफकोर्स कुछ तो होता है. सेपरेशन ऑफ पावर इज दैट कि आप अलग अलग अपनी पावर वेस्टेड है. ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ लॉ बनाना है तो वो ऑफकोर्स सिस्टम इज देयर कि आपको वो करना पड़ता है कि आपको लॉज इनेक्ट करने के लिए, पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में लाने पड़ते हैं. ठीक है. बट पावर सेपरेटली है ना. ठीक है. लेकिन ट्रांसफर करनी है किसी जज की तो ऐसे नहीं है जरूरी कॉलेजियम से हो जाएगा. वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट की हेल्प चाहिए. अब इन्फ्लुएंस देखो, अगर ये जॉइंट हो जाएंगे जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है कि आप इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाती है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. अब जुडिशियली सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर डेमोक्रेसी इट शुड बी देयर. इन एफिशिएंसी इन द अपॉइंटमेंट्स, the government does have the expertise regarding the requirements of the judges as cooperative to the CGI. The collegium system ensures that the deserving candidate is sitting in the position of judge in the Supreme Court. Of course, yes. तो एफिशिएंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जजेस होते हैं कॉलेजियम में. तो फिर वहाँ पे जो अपॉइंट करेंगे दैट्स विल दे विल अपॉइंट द बेस्ट. Lack of transparency, the limitations of collegium system. The system is non-transparent since it does not involve any official mechanism or secretary. It means bureaucracy नहीं है बीच में, तो that is totally not transparent. ठीक है. तो पब्लिक नॉलेज नहीं होगी कॉलेजियम कब मिल रहा है, कॉलेजियम क्या डिसीजन ले रहा है, बस आपको डिसीजन मिलेगा फाइनली कौन अपॉइंट हो रहा है. ठीक है. Lack of accountability. It is not accountable the collegium system to any administrative body because इनको कहीं बताना नहीं है आपको जाके कि सर हमने ये चॉइस चूज कर लिया किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को. ठीक है. एंड विच लीड टू ऑफकोर्स एक रेक्टिफिकेशन चेक होता है ना, वो नहीं. तो कोई भी कैंडिडेट रॉन्ग चॉइस भी हो सकती है. ठीक है. वायलेशन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. This system gives immense power to judiciary to appoint judges which is against the principle of checks and balances. ये जुडिशरी को पावर मिल जाती है इससे, मतलब किसी को अपॉइंट करने की जो प्रॉपरली एक जज बनने के लायक नहीं है ना. बर्डन ऑन जजेस. देयर इज अ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ कोर्स. तो उनके पास केसेस बहुत है, टाइम कम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अगर अपॉइंटमेंट से होती रहेंगी बिकॉज अगर आप कॉलेजियम सिस्टम को इसके लिए लगा दोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज कौन होने चाहिए, तो केसेस कब सॉल्व होंगे. कॉलेजियम इज व्हाट, 5 जजेस को आप सीनियर मोस्ट जजेस को एक बहुत ही ऐसे काम पे लगा रहे हैं. ठीक है. डिसीजन छोटे जज भी ले सकते हैं लेकिन आप सीनियर मोस्ट या CGI को और सीनियर मोस्ट जजेस को ट्रांसफर्स पे लगा रहे हैं, फिर ट्रांसफर्स पे लगा रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स पे लगा रहे हो. ठीक है. तो दैट इज लाइक बर्डन. ठीक है. पहले से ही केसेस का बर्डन है, आप और काम करे जा रहे हो कुछ. नाउ we have the 99th constitutional amendment and NGAC. So it is National Judicial Appointment Commission. So 99th Constitutional Amendment Act 2014 provided for the establishment of National Judicial Appointment Commission. It is proposed in the proposed NGAC and Jack बोलूँगा मैं इसको अभी से.
The commission would have 6 members: Chief Justice of India, the chairperson, two other senior-most judges of Supreme Court, मतलब चीफ जस्टिस के बाद 2 जज जो होंगे उनके बाद, एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर, टू एमिनेंट पर्सन चूज बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फ्रॉम द सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। 6 मेंबर की बात हुई। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 हो गए आपके सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तीन तीन हो गई है। चौथा यूनियन लॉ मिनिस्टर। पांचवा इज टू एमिनेंट पर्सन, ठीक है, एंड दे आर चूज्ड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जो कौन बनाएगा? सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 बंदे मिलके। सो इट इज़ वेरी सिंपल। एनजाई कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल्स। वन इज ऑफ कोर्स द सीजीआई, ठीक है। सेकंड 2 आर द टॉप, द टू नथिंग बट दे आर द टॉप जजेस, ठीक है। टॉप टू जजेस सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर द सीजीआई। ये हो गए आपके 3 पर्सन ना, ये हो गए ना। देन इज अ यूनियन लॉ मिनिस्टर। ये हो गया आपको 2 1 3 4 बंदे हो गए। 2 बचे। 2 पर्सन आर नथिंग, दे आर लाइक एमिनेंट पर्सनैलिटीज, जो भी हो, कोई भी हो सकता है। ये सिलेक्ट कैसे होंगे? सर्च कम सिलेक्शन मेथड से। इस मेथड में आपकी एक कमेटी होगी। इस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? इसमें होंगे सीजीआई साहब, इसमें होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, और इसमें ही होंगे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब 2 पर्सन चूज करने के लिए आपको इन तीनों की कमेटी बनाई जाएगी। तीनों किसी 2 पर्सन को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, द एक्ट okay. The act sought to make the process of appointment justice more accountable and transparent by involving the executive in the decision making। बेसिकली हमने अभी देखा कि जो कमी थी उसमें एक कमी थी कि इसमें कोई जुडिशल में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थे। तो अब हमने यूनियन लॉ मिनिस्टर को इंक्लूड किया, और 2 एमिनेंट पर्सनैलिटी, वो जज नहीं हो सकते आई गेस। तो फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आ गई, तो मोर अकाउंटेबल, मोर ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है ये। So, however, in October 16, 2015, a 5 membered bench of Supreme Court held the 99th Constitutional Amendment, and NJAC Act 2014 is unconstitutional and void due to the following reason। ये null and void हो चुका है according to this statement। Now क्यों हुआ था? Reasons are manner of selection of the 2 eminent persons। So सबसे पहला reason, जो eminent person, जो 3 people की कमेटी select करेगी, तो इसमें होंगे नॉन जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है। There is a possibility wherein the non-judicial members of the committee could overrule the wishes of Chief Justice of India and sole judicial representative of selection committee। देखो, अगर 6 बंदे हैं, उसमें 6 बंदे हैं, तो अगर किसी चीज़ पे वोट होता है तो टाई होने की पूरी संभावना क्यों है? क्योंकि 3 जज हैं उसमें, वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, तो टाई होने की संभावना है। और उससे क्या होगा? क्योंकि इन तीनों में 2 एमिनेंट पर्सन जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से उनको ओवररूल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-3 के इससे क्या होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, अब टाई हो रहा है, आपका डिसीजन लेट हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है उसका टाइम ऑफ, ठीक है। फिर टाइम, जो डिसीजन टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। आपको दोबारा से उस पर चर्चा करके वोटिंग करनी पड़ेगी, इससे टाइम बर्बाद हो रहा है फालतू का। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, any 2 members of NJAC could veto the proposals of judicial members, thus raising the case of interference in the judiciary by members who are not part of the judiciary। जो 2 members आएंगे any 2 members, जो भी जुडिशियल मेंबर्स हैं, 3 members हमारे जुडिशरी से हैं, उसके अलावा 2 member कोई भी वीटो कर सकते हैं कि हमें डिसीजन पसंद नहीं है। तो giving so much power to the executive might lead to the culture of reciprocity between the 2 organs of democracy, which are ultimately supposed to function independently। देखो, अब देखो, दो चीज़ें थी, जो 3 बंदे हैं, डाटा कम्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और कहाँ से? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से आएंगे, और आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जुडिशियल को इंटीग्रेट कर रहे हो। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर आपकी जो सोल इंडिपेंडेंसी थी, आपकी इंटीग्रेशन थी, आपकी जो अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर आपका सीधा सीधा वायलेट हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना। तो दैट्स वाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट वैलिड।
Okay, so the memorandum of procedure. After the striking down of NJAC, the Supreme Court vowed to improve the transparency of the collegium and allow execution to raise its issues. For this, a system of memorandum of procedure was introduced wherein the government can raise objections and can give the views and regards the name of recommendation by the collegium. बेसिकली जो एनजेक का मेन पर्पस था उसमें एग्जीक्यूटिव को घुसाना ताकि एग्जीक्यूटिव से ट्रांसपेरेंसी आ सके, ठीक है। तो वो तो उन्होंने डिसॉल्व कर दिए ये लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लाया कि ठीक है, अगर कॉलेजियम के रिकमेंड किए गए नेम्स पे आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, ठीक है, अपने व्यूज़ बताइए उसके बारे में। So memorandum of procedure is a document framed by the government lays down the process of judicial appointments to Supreme Court and the High Courts. So it is basically the document गवर्नमेंट फ्रेम करती है, तो ये बेसिकली जुडिशियल अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में बताता है। December 2015, the Supreme Court asked the government to finalize the memorandum of procedure after incorporating suggestions from the CGI. These include एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए, सेक्रेटरीट एंड कंप्लेंट्स के बारे में, मतलब जुडिशरी सॉरी एग्जीक्यूटिव को बीच में लाना और एडमिनिस्ट्रेटिव को। The Supreme Court, on receiving memorandum of procedure, can recommend new names or ignore the government objection. So basically, it can recommend new names। एमओपी जब आएगी उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे कैन टेक द नेम्स और इग्नोर, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने बताया होगा। If the court reiterates and recommends the name again, the government is bound to appoint the recommended names, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि हमें यही चाहिए जो हमने बोले थे, आपके नहीं चलेंगे, तो गवर्नमेंट बाउंड है फिर। However, the MOP does not specify a time frame for the central government to act on the collegium decision. तो एक्ट करने के लिए जो भी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट कर ले जो भी डिसीजन ले। The mistrust of Supreme Court towards the government measures the reform is quite clear and is definitely understandable. However, this is not to suggest that the present collegium system is perfect. The mechanism of judicial appointments must ensure the primacy of the judiciary. Basically, आपको primacy important judiciary को देनी होगी, not कि आपके personal issues के लिए आप कर लो, ठीक है। Now, coming to next, accountability and transferability, basically very important things. Okay, now I'll just go through 1 to 4 2 clause है, which is appointment citizen of India होना चाहिए आपके पास 5 साल के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 5 साल आपको किसी हाई कोर्ट में जज एज ए जज होना चाहिए, ठीक है। 2 और मोर सच कोर्ट्स भी हो सकते हैं सेशन में। बीइंग फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, ठीक है। 1 और मोर कोर्ट भी हो सकते हैं। he or she must be a distinguished jurist in the opinion of president के हिसाब से अलग होनी चाहिए, मिनिमम एज बार नहीं है कुछ, ठीक है। Oath. So every person appointed the judge of the Supreme Court shall before the enter upon his office make the subscribe before the president or some person appointed on that behalf by him। तो oath लेनी होती है प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट साहब जिसको बोलते हैं उसके सामने, ठीक है। The oath consists of truth and faith, allegiance, uphold the sovereignty, integrity of India to truly and faithfully बेस्ट ऑफ द एबिलिटी के हिसाब से, बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से जो भी अपना रिजल्ट देना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को अपहोल्ड करना, सबसे ऊपर रखना। सैलरी इज नथिंग, सैलरी इज लाइक 90,000 to 2.50 lakh per month in 2018। Allowances, some of the allowances like medical card, telephone, accommodation, etc. Tenure is not fixed tenure। So the judge holds office until he attains the age of 65 years तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो he now any question regarding his age is to be determined by such authority and in such a manner as provided by the parliament। He can resign his office by writing to the president, of course। He can be removed from his office in the manner provided by the president on the recommendation of parliament के basis president उसको remove कर सकते हैं on the प्रेसिडेंट के बेसिस, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। So in the next lecture we'll just go through the how the judges are removed and the ground of removal क्या होने चाहिए, impeachment procedures,
एक्टिंग चीफ जस्टिस, एड हॉक जजेस जो कभी कभी आते हैं बीच बीच में. And the retire will not go through this retirement procedures. We'll just quickly go through it. And we'll first going to the independent Supreme Court and procedure of the court ASAP. So this is enough for this lecture. Thank you.